Outreach Ministries presents यीशु की जय. Good morning, my dear friends, and welcome to our today's special program. शुभ प्रभात मेरे प्रिय दोस्तों और आज के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है. I know you are busy getting ready for the Christmas celebration. और मैं जानता हूँ आप व्यस्त हैं क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारी में. Yes, this morning we want to bring your attention to the claims made by Jesus Christ. और इस सुबह हम आपका ध्यान यीशु के दावों के ऊपर लाएंगे. Many people make many big claims, but we come to know later on that they were untrue. और बहुत सारे लोग अपने बारे में अलग अलग दावे करते हैं पर बाद में हम ये जानते हैं कि वो सच नहीं. But this morning let us look into the life of Jesus, what he claims and what he claims is true or no. और इस सुबह हम देखेंगे कि यीशु के जीवन में वो क्या दावे करते हैं और वो जो दावे किए हैं वो सच है या नहीं. There is only one person in the history of the world और पूरे दुनिया के इतिहास में एक ही व्यक्ति है whose birth was foretold thousands of years ago in great details before he was born. जिनका जन्म हजारों साल पहले भविष्यवाणी किया गया विस्तारित तरह से. And that is none other but Jesus Christ our और Lord. वो कोई और नहीं पर हमारा प्रभु यीशु. I want to give you a quick Bible reference which you can read later on. और मैं तुरंत बाइबल के रेफरेंस देना चाहूंगा जो आप बाद में पढ़ सकते हैं. The first is from the incidents of his life which were foretold is his birth. और पहला उसके जीवन को बताता है जो उसके जन्म के बारे में बोलता है. The birth of Jesus was foretold in Isaiah 7:14. और यीशु का जन्म की भविष्यवाणी यशायाह 7:14 में की गई Which थी. was fulfilled in Matthew 1:18 and 22 and 23. और जो मत्ती के 1:18 और 22-23 में पूरी हुई. The place of his birth. उसके जन्म का स्थान. It was prophesied in Micah 5:2. और उसकी भविष्यवाणी मीका के 5:2 में की गई. And it was fulfilled in Luke 2:4, 6 and 7. और वो लूका के 2, 4, 6, 7 में पूरी हुई. And the death, the purpose of his death और मृत्यु और उसके मृत्यु का हेतु is prophesied in Isaiah 53:4 to 6. और उसकी भविष्यवाणी यशायाह 53, 4 और 6 में की It गई was है. fulfilled in, and it is shown in 1 Corinthians 5:21. और वो जो है 1 कुरिन्थियों 5:21 में पूरी हुई और दिखाई गई. 1 Peter 2:24. 1 पत्रस 2:24. His childhood will be spent in Egypt. उसका बचपन मिस्र में होगा. Hosea 11:1. होशे 11:1. Fulfilled in Matthew 2:14 and 15. और मत्ती 2, 14 और 15 में पूरा हुआ. The betrayal by his own Judas और उसके अपने ने उसे यहूदा ने जो धोखा दिया वो is written in Zechariah 11:12 and 13. वो जकरिया 11, 12, 13 में लिखा है. And 13:6. और 13:6 में लिखा Which है. we see it being fulfilled in Matthew 26:14 to 16. और वो मत्ती 26, 14 और 16 में पूरा होता है. And Matthew 27:3 to 10. और मत्ती 27, 3 से 10. And his death on the cross. और उसकी मृत्यु क्रूस के ऊपर. Psalms 22. और भजन संहिता 22. Fulfilled in Matthew 27. और वो पूरा होता है मत्ती 27 His में. resurrection. और उसका फिर से जी उठना. Psalm 16:9 and 10. और भजन संहिता 16, 9 और 10. It was prophesied और वो and भविष्यवाणी was किया fulfilled, गया था. and it's mentioned in Acts 2:31 और वो पूरा हुआ प्रेरितों के 31वें अध्याय में. and Luke 24. और लूका के 24 में. So my dear friends, तो मेरे प्रिय दोस्तों this is about Jesus Christ. और ये है यीशु मसीह के बारे में. Like about more than 300 prophecies और 300 से भी बढ़कर भविष्यवाणियां about his birth, his coming, the place of birth, how he will grow and whom he will meet and all the details. और उसके जन्म के बारे में वो कैसे आएंगे, वो कहाँ पैदा होंगे और किससे मिलेंगे, सारी जानकारी विस्तारित तौर And पर. how he will die and how he will rise up. और वो कैसे मरेंगे और फिर से कैसे जी उठेंगे. And also how he will come back on the clouds. और कैसे वो फिर से बादलों पे आएंगे. And how he will establish his kingdom. और कैसे वो अपने राज्य की स्थापना And how he करेंगे. will judge the whole world in righteousness. और कैसे वो धार्मिकता में पूरे दुनिया
दुनिया का न्याय करेंगे। Everything is written and it is all being fulfilled. और हर एक बात लिखी हुई है और वो हर एक बात पूरी हुई। And some great scholars say और कुछ विशेष वैज्ञानिक कहते हैं that if there are 300 detailed prophecies about a person and if they are fulfilled in this way so अगर- accurately, और इतना पूरी तरह से जो 300 से बढ़कर भविष्यवाणियां जिस व्यक्ति के बारे में की गई और वो पूरी हुई, it is only 1 in 50 billion. और वो केवल एक ही है 15 मिलियन लोगों में, 50 billion में. 50 बिलियन में, That is the rate of accuracy. और वो है पूरी तरह से जो हुआ उसके बारे So में। I want to tell you, as you are ready to celebrate Christmas, this Jesus is an incomparable Jesus. और जैसे ही आप यीशु जन्म उत्सव मनाने के लिए तैयार हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये वो यीशु है जिसकी तुलना कहीं नहीं की जा There is सकती। nobody like him. उसके जैसा कोई नहीं है, There is nobody like him. उसके जैसा कोई नहीं There है, is nobody equal to him. उसके समान कोई नहीं है, There is nobody who can even come close to him. और ऐसा कोई नहीं जो उसके करीब तक जा सके, And though there is of course nobody greater than him. और उससे बढ़कर तो कोई नहीं, And there is nobody second to him. और उसके आगे भी कोई नहीं। The clown, now let us go and see quickly the claims that he made about और himself. तुरंत हम आगे जाएंगे और देखेंगे कि कौन से दावे यीशु मसीह ने अपने बारे में किए। He said first is I am the Christ. उसने पहले कहा कि मैं मसीहा हूँ। When they asked him, are you the Christ? जब उसको पूछा गया क्या तू मसीहा है, He said, I am. उसने कहा हाँ मैं And you हूँ। shall see the Son of Man sitting at the right hand of power. और उसने कहा कि तुम देखोगे कि मनुष्य का पुत्र जो है वो दाहिने और सामर्थ्य पे सिंहासन पे And he बैठेगा, will come in the clouds of heaven. और वो स्वर्गीय बादलों पे आएगा। John 8:42 says, और यूहान 8:42 कहता है, he says, I came down from heaven. और वहाँ कहता है कि मैं स्वर्ग से आया हूँ। John 5, और यूहान 5, 17 and 18 says, 17 और 18 कहता है, my father's works I do. मेरे पिता के काम मैं करता हूँ। He made God his father and thus he made himself equal with God. और उसने परमेश्वर को अपना पिता बताया और अपने आप को उसके समान किया। And in John 10:30 he says, और यूहान 10:13 में वो कहता है, 10:30, और 10:30 में वो कहता he है, says, I and my father are one. वो कहते हैं कि मैं और मेरा पिता एक ही हैं। Which really angered the Jews and they wanted to throw stones at him. और जिस बात से यहूदियों को बहुत गुस्सा आया और उसे पत्थरवाह करना चाहते थे, Because he made himself equal with God. क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर के समानता में And to बताया। their queries, Jesus said in John 14:7, और यूहान 14:7 में वो कहते हैं, if you know me, you will know my father अगर also. तुम मुझे जानते हो तो तुम मेरे पिता को भी जानते And हो। John 14:8 and 9, और यूहान 14:8 और 9, he says, if you have seen me, you have seen my father also. अगर तुमने मुझे देखा है तो मेरे पिता को भी देखा है। Yes, my dear friends. हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, All these claims of Jesus. और ये सारे यीशु के दावे, He said, I am the Christ. उसने कहा कि मैं मसीह हूँ। You will see me sitting and coming in power. और उसने कहा कि तुम मुझे सिंहासन के पास बैठा हुआ और सामर्थ्य में आते हुए He said, देखोगे। you will see me sitting at the right hand of the Father. और उसने कहा कि तुम मुझे पिता के दाहिने और बैठा हुआ He said, I देखोगे। came down to do not my will, और उसने कहा कि मैं नीचे यहाँ पर अपनी इच्छा पूरी But the करने नहीं Father's आया, will पर पिता की इच्छा came from heaven स्वर्ग से, to take us there. और वहां ले जाने He is के the लिए way. हमें। वही मार्ग He is the है, truth. वही सत्य He है, is the life. और वही जीवन है, He is the light. और वही रोशनी He है, is the food for our soul. और वो हमारी आत्मा के लिए He is भोजन the है, water for our spirit. और वो हमारे आत्मा के लिए पानी He है। said to the Samaritan woman, I'll give you living water. उसने समरिटन स्त्री से कहा कि मैं तुझे जीवित जल If you दूंगा, have that, you will never thirst. और अगर तू उसे पिएगी तो कभी प्यासी नहीं My dear रहेगी। friends, मेरे प्रिय दोस्तों, She came to know that he is the Messiah और वो जान गई कि वही मसीहा है, because he told her deep things about her life. क्योंकि उसके जीवन के बारे में उसने उसे गहरी बातें And बताई, he told even deep things about God. और उसने परमेश्वर के बारे में भी बहुत गहरी बातें And she बताई, told everybody he is the Messiah. और उसने सबको जाके कहा कि यही मसीहा As he है। revealed himself to this woman, और जैसे उसने स्त्री को अपना प्रगटीकरण दिया, he wants to reveal himself to you. वो अपने आप को आपको भी प्रकट करना Because चाहते this हैं, Jesus who came as a little baby क्योंकि ये यीशु जो एक छोटा बच्चा बनकर आए and who died on the cross as a
sinner और जो क्रूस पर एक पापी बनकर मरे and who was numbered with the thieves and transgressors, और जिनको चोरों के साथ में गिना गया, he defeated the devil and he rose up from the dead. और उसने शैतान को हराया और मृतकों में से जी उठा, He has defeated sin, sickness, death and devil. और उसने बीमारी को, पाप को और शैतान को हराया है। Matthew 9:6 he said the Son of Man has power on earth to forgive sins. और मत्ती 9:6 कहता है कि मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का What अधिकार is the है। character of God? और परमेश्वर का चरित्र क्या है? God has created everything, the Bible says in the book of Genesis. और उत्पत्ति पुस्तक में बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने सब कुछ निर्माण किया। Opening chapter, opening verse, in the beginning God created heaven and earth. और पहला अध्याय शुरुआत में ही परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण Many किया। good cricketers, first ball they give a 6. और बहुत अच्छे क्रिकेटर्स जब आते हैं पहले ही बॉल में छक्का मारते हैं। Here in the Bible we see the power of God. The first was opening verse. It is not a 4 or 6, but it is like a triple century. और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के सामर्थ्य को पहले वचन में ही कि वो 4 या छक्का नहीं बल्कि 666 जैसे Triple century, triple century. सेंचुरी जैसे। So he says that in the beginning God created heavens and earth. और वहां पे से लिखा है कि शुरुआत में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी So निर्माण की। the very fact that everything he created, so he has power and authority and dominion and control over all the things. तो हकीकत बात यह है कि जो बात उसने निर्माण की तो सारी चीजों के ऊपर उसका अधिकार, उसका सामर्थ्य और उसकी शक्ति And है। I would quickly like to show you how Jesus exercised and showed that power. He demonstrated his power over all the things. और मैं तुरंत आपको बताना चाहूंगा कि कैसे यीशु मसीह ने उस सामर्थ्य को दर्शाया और उसका इस्तेमाल किया, Which nobody has demonstrated till today. और जो किसी ने भी दर्शाया नहीं है आज तक। First is he showed his power over nature. और पहली बात उसने अपना सामर्थ्य निसर्ग के ऊपर दिखाया। He rebuked the sea. उसने समुद्र को धमकाया, He rebuked the waves. उसने लहरों को धमकाया, He commanded and a fish came with a coin. और उसने आज्ञा दी और मछली जो है एक सिक्का लेके आई। And you know, there was no fruit in the tree. He cursed the fig tree. और आपको पता है कि वो पेड़ के ऊपर फल नहीं था तो उसने जैतून के अंजीर के पेड़ को शाप दिया। And everybody said, wow, you just spoke a word and it dried up. तो हर एक ने कहा, अरे तूने केवल शब्द बोला और पेड़ सूख गया। He showed his power when he multiplied the 5 loaves and the fish. और उसने सामर्थ्य दिखाया जब उसने 5 रोटी और मछली को बहुगुणित किया। And 5,000 were fed, and in another case 7,000 were fed. और 5,000 लोगों को खाना खिलाया और दूसरी जगह 7,000 लोगों को। He showed hidden knowledge. और उसने छुपा हुआ रहस्य बताया। John 2:24 says he knew what is in all the men. और यूहन्ना 2:24 कहता है कि वो जानता था कि मनुष्य के अंदर क्या है He सब। knows what, who is thinking what, who is planning what. He knows everything. और वो सब जानता है कौन क्या सोचता है, कौन क्या योजना करता है। Yes, my dear friends. हाँ मेरे प्रिय Even as दोस्तों, you are watching, he knows what's going on in your mind. और जैसे ही आप ये देख रहे हैं वो जानते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा He है, knows what's going on in your family. और वो ये भी जानते हैं कि आपके परिवार में क्या चल रहा है। He also has not only hidden secret knowledge of what is in people's mind, he also has foreknowledge of what is going to happen somewhere else. और उनके पास केवल यही ज्ञान नहीं है छुपा हुआ कि लोगों के मन में, जीवन में क्या हो रहा है, पर जो होने वाला है उसका भी ज्ञान है उनके पास। Yes, he said when they were going to bring a donkey, he said, go to the next village and you will find a donkey and a colt tied. Loose it and bring them to me. और उसने जब वो गधा लेने जा रहे थे तो उसने कहा कि आगे जाओ और वहां पे तुम्हें एक गधी और उसका बछड़ा मिलेगा, उसे छुड़ाओ और मेरे लिए ले आओ। It happened exactly as he said. और जैसे उसने कहा वैसे ही हुआ। My dear friends, one word of God never fails. मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का एक वचन भी कभी अपयशी नहीं And होता। Jesus said, और यीशु ने कहा, heaven and earth will pass away, but my word shall not fail. स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरा वचन कभी नहीं। Everything will be fulfilled. हर एक बात पूरी होगी, Everything will come to pass. हर एक चीज पूरी होगी। In Malachi 3:6, God says, I am the Lord, I do not change. मलाकी 3:6 में परमेश्वर कहते हैं कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो कभी बदलता नहीं। And Hebrews 13:8 says, Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. और हिब्रू 13:8 कहता है कि यीशु मसीह वही है जो कल थे, जो आज है, जो हमेशा He showed रहेंगे। his authority to forgive sins. और उसने अपना अधिकार दिखाया पाप क्षमा करने का। Showed his power over sin. उसने अपना सामर्थ्य पाप के ऊपर दिखाया। When they brought somebody
और जब वो किसी को ले आए who was caught red-handed in sin, और जिसे पाप करते समय पकड़ा गया था, he said, "Go, I forgive you. और उसने कहा जा मैंने तेरे पाप I क्षमा do not किए, accuse you. मैं तुझे दोष नहीं लगाता, Go, sin no more." और जा फिर ज्यादा पाप मत कर। And people said, "Who is he to forgive sins?" लोगों ने कहा ये कौन है जो पाप क्षमा करता है? And he was trying to give them a hint. I can forgive sin. Now guess who I am? और वो उन्हें दिखाना चाहता, बताना चाह रहा था कि मैं पाप क्षमा करता हूँ, अब तुम जान जाओ मैं कौन हूँ। So he showed his power over nature. तो उसने अपना सामर्थ्य दिखाया निसर्ग के He ऊपर, had hidden knowledge. और उसको गुप्त रहस्य He knew ज्ञान what is in था, everybody's mind and heart. और वो जानता था हर एक के मन और हृदय में क्या And है, he knew what's happening next everywhere. और वो ये भी जानता था कि आगे हर जगह क्या होने वाला He है। had authority over sin. उसको पाप के ऊपर उसका अधिकार He था, had power over sickness और and disease. बीमारी और रोगों के ऊपर उसे अधिकार था। Matthew 4:23 says, मत्ती 4:23 कहता है, Jesus, when people came from every city, every village and every area, Jesus healed every kind of sickness and every kind of disease. जब लोग हर एक अलग अलग जगह से, अलग अलग शहरों से आए, यीशु मसीह ने हर प्रकार के रोग और बीमारियों को चंगा किया। He healed them all. उनने सबको चंगा किया, And that too free. और वो भी मुफ्त में। In Matthew 8:17, और मत्ती it 8:17 says the same thing. वही बात वो कहते In हैं। 1 Peter 2:24, और 1 पत्रस 2:24 it says the same thing. वही बात वो कहते हैं। Jesus took all our sickness in his body and bore them on the cross. और यीशु मसीह ने हमारी सारी बीमारियां अपने शरीर के ऊपर ली और क्रूस पे चढ़ गए। By whose stripes you are healed. और किसके फटकों से आप चंगे होते हैं? And Isaiah 53 says the same thing. और यशायाह 53 वही बात कहता है। He was bruised for us. और वो हमारे लिए छलनी He हुआ, was wounded for our transgressions. और हमारे पापों के लिए वो घायल किया गया, And the punishment of our peace was put on him. और हमारे शांति की सजा जो थी उसके ऊपर डाली And गई, by his stripes we are healed. और उसके शरीर पे खाए हुए फटकों से हमें चंगाई He है, had power over death. और उसे मृत्यु के ऊपर सामर्थ्य There was था। a widow's son's dead body was being taken. और एक विधवा का बेटे की मृतक शरीर लेके जा रहे थे, He just touched him and he woke up and he got alive. और उसने केवल उसे छुआ, वो उठ गया और जिंदा हो गया, He gave him to his mother. और उसने उसे उसके माँ को सौंपा, Jairus' daughter died. और जायरस की बेटी जो है वो मर गई थी। Jesus went there. यीशु वहां गए, He said, "Little girl, arise." उसने कहा छोटी बेटी उठ जा, She got up. वो उठ गई, She rose from the dead. और वो मृत्यु से जी उठी। Lazarus was dead and 4 days passed. और लाजरस को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे, But when Jesus said, "Lazarus, come out," he came out from the grave. पर जब यीशु मसीह ने कहा लाजरस बाहर आ जा, तो वो कब्र से बाहर आ गया। Who has the power over sin? और किसका है सामर्थ्य पाप के Who ऊपर? has power over sickness? और किसका है सामर्थ्य Who बीमारियों has के power over ऊपर? death? और किसका है सामर्थ्य मृत्यु के ऊपर? Only Jesus Christ. केवल यीशु का, Only Jesus Christ. केवल यीशु का। He showed his power. उसने दिखाया He अपना showed from अधिकार। where he came. उसने दिखाया वो कहां से He आया, said why he came. और उसने बताया वो क्यों And he आए, showed that whatever he is saying is true. और उसने ये भी दिखाया वो जो कह रहे हैं वो सही He है। also had power over the devil. और उसको सामर्थ्य था शैतान के ऊपर भी। He rebuked the evil powers, and from one person, thousands of legions of demons were gone. और उसने एक व्यक्ति के शरीर से दुरात्मा को धत्कारा, तो हजारों दुरात्माओं की सेना उसमें से बाहर निकल गई। Yes, हाँ, the Bible says बाइबल कहती he है, cast out demons with the word. और उसने अपने शब्द से शैतान को निकाला, He cast out them with power. और उसे सामर्थ्य से उसको बाहर निकाला। That is what Jesus is. और यही है यीशु, He loves you. वो आपसे प्रेम करते हैं। Why did he come? और क्यों आए वो? What is Christmas all और about? क्या है यीशु का It is जन्मोत्सव? not about just rejoicing and drinking and dancing. और वो केवल मजे उठाना, दारू पीना और नाचना It नहीं, is not about just new clothes, it's about a new life. और वो केवल नए कपड़ों के बारे में नहीं, बल्कि नए जीवन के बारे में It's है। going to a whole new level in our life, in our thinking. और वो हमारे सोच, हमारे जीवन में हमें एक ऊंचे स्तर पे ले जाता है। It's about just being like Mary, who said yes to Jesus, and then
Jesus transformed her whole life. और वो इसके बारे में ऐसा है कि जैसे मरियम ने हाँ कहा यीशु को और पूरा जीवन बदल जाता है उससे। That is what Jesus wants to do to you. और वही यीशु मसीह आपके साथ करना चाहते हैं। Jesus says in John 6:45, और यीशु कहते हैं यूहान 6:44 में, every man that has learned from God will come to me. और हर एक मनुष्य जो परमेश्वर से सीखा है वो मेरे पास आएगा। And in John 6:47 it says, और यूहान 6:47 कहता says, he है, that believes in me has everlasting life. और जो मुझ पे विश्वास करता है उसको सार्वकालिक जीवन Think है। about the nativity scene. और सोचें आप जो आपने देखा, The traditional scene of the birth of Jesus with Mary and Joseph in a manger. और आप सोचें कि कैसे चरनी में वो पारंपरिक जो दृश्य दिखाते हैं, कैसे यीशु मसीह चरनी में पैदा हुए And Mary was holding him और in her मरियम arms. जो है उसे अपने हाथों में पकड़े हुए थी। Mary carried him for 9 months और मरियम ने उसे 9 महीने अपने पास संभाला, in her stomach. अपने पेट में। But Jesus पर यीशु- wants to live all your life in you. पर यीशु पूरा जीवन भर आपके अपने अंदर रहना And चाहते he हैं wants you to live with him for eternity. और वो चाहते हैं कि आप उसके साथ हमेशा के लिए सार्वकालिक जीवन जिएं। Mary was just holding him as a baby, और मरियम जो है वो केवल उसे एक बच्चा होने के नाते पकड़ रही थी, but Mary did not know that Almighty God is holding her all her life. पर मरियम ये नहीं जानती थी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके पूरे जीवन को पकड़े हुए है। Mary fed him, मरियम ने उसे खिलाया, but she doesn't know that Almighty God feeds her and the whole world. और पर वो ये नहीं जानती थी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसे खिलाता है और पूरे दुनिया को। This little baby whom she is holding holds the entire universe. और ये छोटा सा बच्चा जिसे वो पकड़े हुए थी वो पूरे सृष्टि को थामे हुए है। God Almighty, परमेश्वर सर्वशक्तिमान, supernatural and creator God. अलौकिक और निर्माण करता The परमेश्वर, God who has created the heavens and the earth. और वो परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया, He who created the stars and planets. और वो ये जिसने तारे और सारे प्लैनेट्स निर्माण He किए। came for you as a baby, my dear brothers and sisters. और मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो आपके लिए एक बच्चा बनकर आए, He came for you and me as a little baby. और वो आपके लिए और मेरे लिए एक छोटा सा बच्चा बनकर The आए। Bible says, बाइबल कहती in the है, fullness of time, God sent His Son through a woman. और समय पूरे होते ही परमेश्वर ने अपने बेटे को एक स्त्री के द्वारा भेजा, That's what God did. और यही परमेश्वर ने And किया। what did Jesus do for you and me? और यीशु क्या करते हैं आपके लिए और मेरे He लिए? came and took your place and my place. और वो आए और उन्होंने मेरी और आपकी जगह And He ली, gave His life on the cross. और उन्होंने अपनी जीवन क्रूस के ऊपर He दिया, bore all the pain. और उसने सारे तकलीफों को And He उठाया died. और मर गए, And on the third day He rose up. और फिर तीसरे दिन वो जी उठे। Yes, He shed His blood. हाँ, उन्होंने अपना लहू He बहाया, gave His everything. उसने अपना सब कुछ He दे had only दिया, one purpose. और एक ही हेतु था, No two purpose. 2 हेतु नहीं, Only one purpose. एक ही हेतु था, And that was to save you and me. और वो था आपको और मुझे बचाना, To pay the price for you and me. और आपके लिए और मेरे लिए कीमत To चुकाना, make you completely free from every other authorities in this world and even from the authority of the devil. और इस दुनिया की सारी सत्ता और शैतान की सत्ता से आपको पूरी तरह से आजाद करने So के that लिए, you will be just like Him. और इस कारण कि आप केवल उसके समान बन जाएं। Now I want to tell you, अब बात मुझे बताना if you है, believe in Jesus, अगर आप यीशु पे विश्वास like करते Mary, हैं, if you say yes, और मरियम के जैसे अगर आप कहते हैं हाँ, let it happen according to your word. कि तेरे वचन के अनुसार I हो, want to tell you, Christ will be born in your life. मुझे आपको बताने दो कि मसीह आपके जीवन में पैदा होंगे, Christ will become a reality. और मसीह आपके जीवन में एक हकीकत It won't be बनेंगे, just a book. और वो केवल एक पुस्तक नहीं It won't होगी, be a page. और वो केवल एक पन्ना न The होगा, Bible will not be only a message. और बाइबल केवल एक मैसेज न होगा, Bible will become real. और बाइबल आपके लिए The हकीकत Bible will बनेगा, become real. बाइबल आपके लिए हकीकत Bible बनेगा, will become everything for you. बाइबल आपके लिए सब कुछ बन You will जाएगा, have so much love for the Bible which no human ability can produce. और इतना प्रेम आपके अंदर बाइबल के लिए होगा कि कोई भी मनुष्य
कि कहीं भी वो उसे पैदा नहीं कर You सकता। will love it and attend to it more than silver and gold and diamonds. और आप उससे सोने, चांदी, हीरे, जवाहरातों से भी ज्यादा प्रेम करेंगे। You'll give so much favor and priority for Bible more than anything in your life. और आप बाइबल को जीवन की हर एक बात से ज्यादा महत्व देंगे। That is what happens when Christ comes in your life. और यही होता है जब मसीह आपके जीवन में आते हैं। That is what happens when Christ enters your life and start changing every area. और यही होता है जब मसीह आपके जीवन में आते हैं और आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को बदलते हैं। And as you are busy celebrating your और Christmas, जैसे ही आप व्यस्त हैं यीशु जन्म उत्सव मनाने I में, would like to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना The चाहूंगा। greatest joy and privilege for me is to pray for you. और सबसे बड़ी बात और मान सम्मान का और आनंद मेरे लिए है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। I was not a Christian, मैं मसीह नहीं था, but when I was 15 years old, पर जब मैं 15 साल का था the Lord Jesus healed me from an incurable heart disease. और यीशु मसीह ने मुझे कभी भी ठीक न होने वाले हृदय रोग से चंगाई दी। And since then, और तब से I didn't have any trouble with my sickness. और तभी से मुझे किसी भी प्रकार की कभी कोई बीमारी नहीं Since हुई। then, I did not have any problem which I had. और मेरा जो भी समस्या थी उसके बाद कभी मुझे वो तकलीफ नहीं हुई। I walk in health. मैं स्वस्थ में चलता हूँ। He has healed me. उसने मुझे चंगा किया है Therefore, I trust in Him. और इसलिए मैं उस पे विश्वास And I रखता will हूँ। welcome you to trust in Him. और मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप भी उस पे विश्वास Yes, you may be करें। trusting in Him, हाँ, हो सकता है आप उस पे भरोसा करते but are you हैं, walking with Him? पर क्या आप उसके साथ He's चलते हैं? inviting you. वो आपको बुला रहा है। Come, आइए, allow Him to live उसे जीने दे अपने and अंदर walk in you और उसके साथ and to चलने lead you दे and guide you. और उसे मार्गदर्शन करने दे। Let us quickly pray. आइए तुरंत हम प्रार्थना करें। Loving Heavenly Father, स्वर्गीय प्रेमी पिता, even as we pray this morning, आज सुबह जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, we remember all our brothers and sisters and precious families all over who are watching this program. और प्रभु जी हम याद करते हैं उन सारे भाई बहनों को, उन सारे मूल्यवान परिवारों को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं। Dear Father, first of all we pray that you will be gracious to everyone and wipe away all the tears. प्रिय पिता, हम पहले प्रार्थना करते हैं कि आप सब के साथ उद्धार से आएंगे, पेश आएंगे और सब के आंसुओं को आप पोंछ देंगे। Lord, forgive all their sins. पिता, उनके सारे पापों को क्षमा कर। As they repent, Lord, help them to turn away from their sins. और जैसे वो पश्चाताप करते हैं प्रभु, उनकी सहायता मदद कर कि वो अपने पापों से मुड़ जाएं। Cleanse them with your blood, Lord Jesus. यीशु मसीह उनको अपने लहू से धो दे, Make them a new person, Lord. उन्हें नया व्यक्ति बना प्रभु, Empower and fill them with your Holy Spirit, और Father. अपने पवित्र आत्मा से उन्हें तू सुशोभित कर। And not only that, take them on high places, Lord. और वही केवल नहीं प्रभु, पर उन्हें ऊंचे स्थानों पे ले जा। Lift them up as they get yoked with your Spirit, और Lord. प्रभु जी जैसे वो आपके आत्मा से भर जाएं, उन्हें तू ऊंचा उठा। Lord, take them from their present circumstances and take them higher and higher as they obey and honor you, Lord. और प्रभु जी उनके अभी की हालातों से उन्हें तू ऊंचा ऊंचा उठा प्रभु, जैसे ही वो आपकी आज्ञा का पालन Raise करें। up your people, Lord. प्रभु तू अपने लोगों को ऊंचा उठा This Christmas will be different than all the Christmas till now. कि यीशु जन्मोत्सव आज का जो है वो अलग होगा जो सारे हो गए उनसे। That they will not only have the parties, but they will have a wonderful fellowship with you. तो केवल पार्टीज ही नहीं करेंगे बल्कि आपके साथ समय व्यतीत करेंगे प्रभु। Now we pray for all those who are sick. और अब हम प्रार्थना करते हैं जो सारे बीमार हैं उनके लिए। Lord, touch them with your nail-pierced hands. प्रिय पिता, अपने छिले हुए हाथों से उन्हें तू छू ले। I rebuke every form of sickness, disease, and every form of germs and death and viral fevers in Jesus' name. हर एक प्रकार के रोग, बीमारी, जर्म्स और वायरल इन्फेक्शंस को यीशु के नाम से मैं धमकाता हूँ। In the mighty name of Jesus we pray. महान सामर्थ्य यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Amen. आमेन। हमारा ये प्रोग्राम देखने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना करने के लिए या परमेश्वर के बारे में और भी अधिक जानकारी पाने के लिए हमसे संपर्क कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 0788-7898-757 या आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें prakash.1@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।